Hi viewers, once again welcome to my channel Physics की पाठशाला. Today I am presented before you to discuss the point 10, 11 and 12, that is EMF and potential difference of a cell, internal resistance of a cell, series and parallel combination of a cell. Point 1 to 9 we have discussed in the previous videos of current electricity video 1 and current electricity video 2. जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बोर्ड व कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अतः आप चैनल पर बने रहें व वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन बाय कंसीडरिंग फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो, दैट इज EMF and potential difference of a cell. But before that we should know how to maintain the steady current in a circuit. To maintain the steady current through a conductor, some external device must do work as a steady rate to take positive charges from lower potential to the higher potential. Such a device is the source of electromotive force or EMF, which may be an electrochemical cell or an electric generator. ये उसी प्रकार से है कि जैसे हमें किसी भी चीज़ को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे, घर के टॉप फ्लोर तक ले जाना है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक ले जाना है, तो ये स्वतः नहीं जाएगी, अपने आप नहीं जाएगी. उस स्थिति में हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ मशीन अटैच करना पड़ेगा. उसी तरह से हमारे अगर सर्किट के अंदर हम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक चार्जेस को फ्लो करवाना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी एक सोर्स को अटैच करना पड़ेगा. वो सोर्स हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सकता है. So let us discuss what is the meaning of the electromotive force or EMF. For that, let us consider a schematic diagram of the cell. Here in the cell, as soon as electrolyte is dipped and it takes dissociations, because of that dissociations positive charges are accumulated at one electrode and negative charges are accumulated at the another electrodes. जब ये charges दो इलेक्ट्रोड्स पे इकट्ठा होते हैं, इनके एक्यूमुलेशंस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है और इन दो चार्जेस के बीच में पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है. अगर हम ये माने कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स Fn है और निगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स Fe है, तो उस स्थिति में जो Fe होगा, निगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू द QE. ऑन द निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द Fn, force will act. In the steady state, the charges stop accumulating further. Hence, on that case, Fn will be equal to Fe. That is, in the steady states, the force acting on the positive charge will be equal to the force acting on the negative charge. That is, on that case, if we want to move further a positive charge from the positive plate to the negative plate, then on that time we have to do certain work. That work will be written as the W will be equal to Fn, that is the force acting on the positive charge, and small d, that is the displacement, where d is the distance between the terminal A to B. The work done per unit charge is E is equal to W by Q, where W can be written as Fn d by Q. In this case, if E is equal to Fn d by Q, this quantity E is known as the electromotive force or EMF of the battery or any other source. Hence, the electromotive force of a source may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from lower to the higher potential. इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करते हैं अगर हम यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने पे हमने जितना काम किया यूनिट चार्ज को मूव करने पे, वही वर्क डन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है. अगर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, अगर बैटरी के टर्मिनल्स एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं है, उस स्थिति में फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज विल बी इक्वल टू द QE, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सभी टर्म्स को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं
FND will be equal to FED is equal to QED. E into D को हम V लिख सकते हैं, that is the potential difference between the two terminals. On that case we will get the E is equal to FND by Q, QV by Q, that is the Q से Q cancel हो गया, V बचा. Hence the EMF of a source is equal to the maximum potential difference between its terminals when it is in the open circuit. Remember, when it is in the open circuit, that is when it is not sending any current in the circuit. In case of the closed circuit, EMF may be defined as the energy supplied by the source in taking a unit positive charge once round the circuit. The EMF is not a force at all. Here in the name electromotive force, it is representing that this is a kind of the force, but it should be remembered that EMF is not a force at all. It is a special case of the potential difference when the circuit is open. So the nature of the work done, it represents the nature of the work done per unit charge. The SI unit of the electromotive force is volt. Now let us compare the EMF and potential difference. EMF, it is the work done by the source in taking a unit charge once round the complete circuit. इसका मतलब एक पूरा कंप्लीट सर्किट करने में जितना वर्क डन हुआ, पूरा कंप्लीट सर्किट करने में जितना वर्क डन हुआ उसी को हम उस सोर्स का ईएमएफ कहते हैं. जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं. सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में हम जो पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. बट अगर हम सेल के दो टर्मिनल के बीच में निकाल रहे हैं, देन दैट विल बी नोन एज द ईएमएफ. सेकेंड पॉइंट, EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, that is when the circuit is open. This is the most important. EMF तभी हम निकालेंगे जब उसका सर्किट हमारा ओपन होगा और सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जबकि हम पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट, सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं. EMF जो होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता. आप देख सकते हैं कि किसी भी सेल का, हम जो देखते हैं नॉर्मल सेल जो यूज़ करते हैं, उसका पोटेंशियल हम जो ईएमएफ देखते हैं 1.5 वोल्ट होता है. वो उसका ईएमएफ है, वो सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता. वो उन दोनों पॉइंट, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए उसको हम ईएमएफ बोलते हैं. लेकिन जब अगर हम उसको सर्किट में लगाते हैं, सर्किट में लगाने पे किसी भी लोड के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल निकालेंगे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, देन दैट इज द इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. और वही अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में निकालते हैं, देन दैट इज नोन एज द ईएमएफ. The EMF is independent of the resistance of the circuit, and the term EMF is used only for the source of EMF. That is, it is used only for the battery or generator or anything else, whatever the source we have applied in the circuit. EMF is always greater than the potential difference between any two points in a circuit. आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम मेज़र करते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में करते हैं, जबकि सबसे बड़ी डिस्टेंस जो सबसे बड़ी लेंथ होगी हमारे सोर्स के दोनों टर्मिनल पे होगी. इसलिए उन दोनों टर्मिनल के बीच में बनने वाला जो पोटेंशियल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा. इसीलिए ईएमएफ कभी भी पोटेंशियल से ज़्यादा आता है, पोटेंशियल ड्रॉप से ज़्यादा आता है. आई थिंक इट्स ओके. सो लेट्स मूव अहेड. लेट अस डिस्कस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. हियर the opposition offered by the electrolytes of the cell to the flow of the electric current through it is called the internal resistance of the cell. ये कुछ ऐसा है कि जैसे ही हम करंट को फ्लो करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज जाता है, लेकिन सेल के अंदर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा होता है. जैसे ही सेल के अंदर वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना शुरू करता है, तो कुछ आयंस जो न्यूट्रल हैं या कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं उसके इस मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं. तो इनके द्वारा जो ऑफर्ड रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल.
इंटरनल रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जो फैक्टर्स हैं वो हैं, नंबर 1, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू विच करंट हैज़ टू बी फ्लो एंड कॉन्सिक्वेंटली अ हायर वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। या हम ये कहें कि हमारे सेल में अगर दोनों इलेक्ट्रोड पास पास हैं, उनके डिस्टेंस बीच की कम है, तो यहाँ पर चार्ज को बहुत थोड़ी सी दूरी चलनी पड़ेगी और उस स्थिति में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन इस स्थिति में अगर दोनों हमारे इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में आयंस या न्यूट्रल आयंस की वजह से बनने वाला जो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। नंबर 2 पॉइंट इज़ ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी वो जो इलेक्ट्रोलाइट है जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी शो करेगा, जितना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी उसकी होगी उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा। जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। वो ईजिली अपने अंदर से करंट को पास करने देगा, उसमें से रेजिस्टेंस जो उसके आयंस होंगे वो कम से कम रेजिस्ट करेंगे। उस स्थिति में इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम बनेगा। नेक्स्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब अगर हम ये देखते हैं कि एक ये सेल था, इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड ऐसे है और दूसरा इलेक्ट्रोड्स ये है, तो इनके बीच का कॉमन एरिया सिर्फ इतना हुआ। उस स्थिति में सिर्फ इतनी दूर का ही हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लेकिन दूसरी स्थिति अगर हम ये देखें, एक ये है और दूसरा भी ये है, इनके बीच में कॉमन एरिया देखिए यहाँ तक का हो रहा है। अगर कॉमन एरिया ये ज़्यादा हो गया तो उस स्थिति में बनने वाला जो कॉमन एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। अगर कॉमन एरिया ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम बनेगा। हैंस वी कैन से दैट इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, important is the inversely proportional to the common area of the electrodes dipped in the electrolyte. Next point is the internal resistance of a cell depends on the nature of the electrodes. Nature of the electrodes मतलब electrodes कितना easily फ्री आयंस अपने दे सकते हैं, जितना इजीली वो अपने आयंस चार्जेस को लिबरेट कर देंगे उसी के हिसाब से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा। अगर इजीली लिबरेट करता है तो कम होगा, और अगर देर से करता है या ज़्यादा एनर्जी लेने के बाद करता है उस स्थिति में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसको समझने के लिए हम एक सेल लेते हैं। इस सेल में हमने उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R रिप्रेजेंट किया हुआ है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I लिबरेट हो रही है, करंट I निकल रही है और निगेटिव टर्मिनल I से होती हुई सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर रही है। इस स्थिति में जो EMF जो बनेगा वो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस बनने वाले पोटेंशियल ड्रॉप के सम के बराबर होगा। दैट इज़ द E विल बी इक्वल टू V कैपिटल प्लस स्मॉल v, दोनों के सम के बराबर होगा। कैपिटल V इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एंड स्मॉल v इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रजिस्टर। इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं, E इज़ इक्वल टू V प्लस V एंड इंस्टेड ऑफ द कैपिटल V वी कैन राइट I इंटू R एंड फॉर द स्मॉल v वी कैन राइट I इंटू स्मॉल r, I कॉमन कर लिया, R प्लस R. So using this we can get the current I is equal to E by R plus R. This relation is known as the circuit equation. Sometimes they have asked this equation. This is important for the further derivations also. So now let's discuss the internal resistance of a cell in terms of the E, V and R. Again let us discuss the same circuit diagram which we have discussed earlier. Here again we will get the E will be equal to capital V plus small v as we have written in the previous derivations. So again instead of the small v we can write I into R, I into small r. So I into small r will be equal to E minus V. From here very easily we can obtain the I is equal to E by V minus 1 whole within bracket into R. This is the required relations. Let us discuss the combination of cells. Cells
can be combined in two ways. As in the resistances we have combined in the series and the parallel, similarly the cells can be combined in the two ways, in the series and in the parallel. Let us discuss one by one. Combination of cells in series means the positive terminal of one battery of one cell will be connected to the negative terminal of the another cell, and the similarly the negative terminal of one cell will be connected to the positive terminal of the other cell. That is, इस स्थिति में करंट को बहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा मिलेगी, एक ही पाथ होगा, दूसरा कोई पाथ नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं cells are connected in series when they are joined end to end so that the same quantity of the electricity must flow through the each cell. इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, हमने 3 सेल लिया, 3 सेल में देखिए कि आप पहला सेल जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले सेल के तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, और तीसरा सेल या आखिरी सेल जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ ये पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड हुआ। इस तरह के कम्बिनेशन को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा होगी करंट को बहने के लिए, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, सिर्फ एक दिशा होगी। इस तरह के कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। तो इस स्थिति में सीरीज कम्बिनेशन की स्थिति में कुछ पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे नंबर 1 पॉइंट है, द EMF ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल EMF। दैट इज द, जो बैटरी बनेगी हमारी इन 3 सेल्स को कंबाइन करने के बाद हमारी एक बैटरी बनेगी, उस बैटरी का टोटल EMF इनके इंडिविजुअल EMF के बराबर होगा, इंडिविजुअल EMF के सम के बराबर होगा। दैट इज अ कैपिटल E, दैट इज अ EMF ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल EMF के सम के बराबर होगा। अगर इस स्थिति में हम E1 E2 E3 देखें और अगर सभी E ही हैं तो जो नेट EMF बनेगा बैटरी का वो इस केस के लिए 3E बनेगा। लेकिन अगर इस तरह के हमने N बैटरीज जोड़े हुए हैं तो उस केस में N इंटू E बनेगा। मेरे ख्याल से सही है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, द करेंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करेंट इन द इंटायर अरेंजमेंट। इस स्थिति में ये कहते हैं कि यहाँ पर करंट जो होगा सभी में आई ही फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि एक ही पाथ है, उसी पाथ से आई करंट यहाँ से ड्रैग होगा और आई करंट ही वापस आएगा। आई करंट ही सभी बैटरीज के थ्रू सभी सेल्स में होता हुआ फिर से वापस आएगा, यानी सर्किट में हर जगह पर हम देखें तो करंट आई ही हमारा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब हमारा इस सर्किट का अगर हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंसेस तीनों हमारे सीरीज कम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इनका सीधे हम सम कर लेंगे। इस केस के लिए हम 3R बोल सकते हैं, R प्लस आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 3R इंटरनल रेजिस्टेंस, सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। और अगर हम इस बाहर वाले सर्किट के साथ, बाहर वाले रेजिस्टेंस के साथ भी इसको कंबाइन करें तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट विल बी इक्वल टू 3R प्लस R। लेकिन अगर इस तरह के N सेल्स जुड़े हुए हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सम ही हो जाएगा N इंटू R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो अगर हम उसको जोड़ देंगे तो बनेगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बैटरी विल बी इक्वल टू NR प्लस R। Hence to summarize all these things what we can write, total EMF of the battery is equal to NE, total internal resistance of the battery is equal to NR, and total resistance of the cell is equal, circuit is equal to NR plus R। यहाँ से अगर हम ये देखें कि अब ओम्स लॉ को अगर अप्लाई करते हैं I is equal to V by R, so I यहाँ पे करंट जो ड्रॉ होगी सर्किट से I that will be equal to NE, that is the total EMF of the battery divided by total resistance of the circuit, that is NE by NR plus R। इससे हमें दो स्थितियां फिर से प्राप्त होती हैं। स्थिति नंबर 1, अगर हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज NR, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि NR के बराबर था, अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, मतलब अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, उस स्थिति में जो करंट बनेगी, हम यहाँ से इस R को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये छोटा है, तो उस स्थिति में जो करंट बनेगी E/R के बराबर बनेगी। ये क्लियर है। स्थिति 2, जब इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से छोटा होगा, मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंसेस से, तो उस स्थिति में जो करंट बनेगी I वो N टाइम्स E/R होगी। यहाँ हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि इस स्थिति में बनने वाली करंट N टाइम्स है E/R के, जबकि यहाँ पर सिर्फ E/R करंट बह रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, उस स्थिति में बनने वाली करंट मैक्सिमम होती है। सो वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द external resistance, then the cells are connected in series to give maximum current. Is it okay? Let's move ahead and discuss the cells in the parallel combinations. Parallel combination means once again the cells are connected in such a way that their positive terminals are connected at one point and negative terminals are connected at another point. यहाँ देखिए ये cells जो भी हैं उन सभी का पॉजिटिव पॉइंट्स एक जगह पे कनेक्ट हो गया और उन सभी सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल्स एक पॉइंट पे कनेक्ट हो गया। तो अगर इस प्रकार से हम सेल्स का कम्बिनेशन करते हैं देन दैट इज़ नोन एज द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। इस स्थिति में हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। वो नंबर 1 पॉइंट है, द EMF ऑफ द बैटरी इज़ द सेम एज दैट ऑफ द सिंगल सेल। इसका मतलब अगर हमारा एक सिंगल सेल का EMF E है, यहाँ पर हमने सभी सेल्स का EMF E लिया हुआ, तो जो हमारी बैटरी बनेगी उस बैटरी का भी EMF E ही होगा। I think it's clear. Number 2 point is there. The current in the external circuit is divided equally among the cells. यहाँ पर हमने जो सेल्स लिया हुआ है सभी का EMF E लिया हुआ है, इसलिए आने वाली करंट जो करंट जाएगी वो इक्वल अमाउंट में हर जगह पे बटेगी। अगर ये सभी सेल्स EMF E के बराबर नहीं होते या इक्वल EMF के नहीं होते तो उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये अलग अलग करंट डिवाइड हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमने जो केस लिया है उस स्थिति में सारे के सारे सेल्स हमारे बराबर EMF के हैं, इसलिए बनने वाली करंट या उनमें बहने वाली करंट सभी में बराबर होगी। इज इट ओके? सो लेट्स मूव अहेड। थर्ड पॉइंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट इज all these resistances are in the parallel, so there the total net internal resistance will be equal to 1 by R will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। इसका मतलब the reciprocal of the total internal resistance, the reciprocal of the total internal resistance is the sum of the reciprocals of the individual internal resistances। is it okay? जो इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस होंगे उनके रेसिप्रोकल का सम इंटरनल रेजिस्टेंस के नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल EMF ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू E, क्योंकि हर एक किसी का EMF E ही था, हर एक सेल का EMF E था, इसलिए पॉइंट 1 से के हिसाब से ये जो बैटरी बनेगी उसका EMF E होगा। और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे R, ये R R R, तो 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus 1 by R up to n times, so we will get the n by R। so 1 by R equivalent will be equal to n by R, so R equivalent will be equal to R by n। is it okay? next, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकला R बाई एन निकला, वो ये R बाई एन इस सारा का सारा जो होगा ये और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में सीरीज़ की तरह वर्क करेंगे, सीरीज़ की तरह जुड़े हुए होंगे। ये सीरीज़ होने का मतलब सीरीज से हम जोड़ दें तो नेट हमारा रेजिस्टेंसेज R बाई एन प्लस R हो जाएगा। इसको कंसिडर करने के बाद हम यहाँ पर बहने वाली करंट को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। करंट जो होगी हमारी टोटल
EMF, that is a E divided by total resistance R by N plus R, इन दोनों के रेशियोज के बराबर होगी। अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं R by N plus R को, तो N ऊपर चला जाएगा एंड वी विल गेट द NE by NR plus R। यहाँ से पर फिर से वही पहले वाली स्थितियाँ दो उत्पन्न होती हैं। अगर हम ये कहें कि R by N, यहाँ से हम अगर N कॉमन कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस R बाई N, इस N से ऊपर वाला N कैंसिल हो जाएगा। उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगर R बाई N बहुत बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, उस स्थिति में बहने वाली करंट जो होगी I N टाइम्स E बाई R के बराबर होगी। स्थिति 2, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल से, सम से, तो उस स्थिति में बहने वाली करंट जो होगी I E बाई R के बराबर होगी। हम यहाँ फिर से देख सकते हैं कि अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, देन in comparison to the internal resistance, then the cells are connected in parallel to get the maximum current। इसलिए हम अपनी स्थिति, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेल्स को सीरीज़ या पैरेलल में अटैच करते हैं, जिस प्रकार से हमारी ज़रूरत होती है। मैक्सिमम हम लोग डेली लाइफ में सेल्स को सीरीज़ में ही कंबाइन करते हैं। ओके डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल फिज़िक्स की पाठशाला। इन दिस वीडियो we stop our discussion here. The remaining points we will discuss in the next video. To remain updated, kindly don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you and bye bye till next video. Thanks a lot. Thank you.